कि साहब वो जो जज जो हरकत किया है उसके बारे में जो है केस बुक करो, मेमोरेंडम देने गए तो तहसीलदार अंदर बैठकर कौन है पूछा, तो ऐसा बीएसपी के लोग मेमोरेंडम, उसको बोलो जाओ बोलो बाहर। अरे ऐसा कौन बोलो, कोई आके बोले क्यों साहब ऐसा बोले, ए चल रहे बाद में बात कर बोल के, अरे तुरे बात करने के बाद उन्होंने गोखले साहब बोले मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, तू क्या बात कर रहे तुम साहब बोले, तो अरे चल यहाँ से इसको निकालो, उसके बाद तू मैं हो गए। तहसीलदार साहब ही कारण है। तो कल प्रोटेस्ट करें ना सर, फिर आज क्या है फिर? नहीं किस वजह से आए आज आप लोग? आज हम इस वजह से आए, हुमनाबाद में जो हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करके अंदर डाले हैं, तो डीसी साहब उन दोनों को इक्वल जस्टिस करें, एक तरफा न करें, एक तरफा। Video sponsored by Albek Family Restaurant, Heritage Ceramic and Sanitation, Mother Choice, Hope Chest Hospital, Tint Ladies Fashion and NPS Degree College. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ We want justice. 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 बहुजन समाज पक्षಕ್ಕೆ बहुजन समाज पक्षಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ದೂರಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ। ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಆದೇಶ ಇತ್ತು, ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳೋಕೆ ಇವತ್ತು ನಾಚಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ನಾಚಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಹುಮನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಮೊರಂ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತಹಸೀಲ್ದಾರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಹೊಲೆ ಮಾದಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹೊಲೆ ಮಾದಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಏನ್ ಗೋಳದ ಇದು, ಈ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು। ಯಾರು ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವತ್ತು, ಇವರು ಯಾರು ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಮೂಗ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋದಾಗ ಈ ಒಂದು ಗುಂಡಾ ವರ್ತನೆ, ಒಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬೈದಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ತೂತು ಮೈಮೆ ಆಗ್ಯದ ಹೊರತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಯಾವ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೂ ಯಾರು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ನೀವು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೈತೀರಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ। ಆದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ, ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಭೆ ನೀವು ಕರೆದಿದ್ರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಸಭೆ ಕರೆದ್ರಿ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಏನ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು? ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಕೇಳಿದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಅದೇ ಮೇಲೆ ಒದ್ದಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಯಾಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ? ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಯದ? ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬಂಧಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ। ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರು, ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಬೋಧೆ ಅಣ್ಣರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಬೋಧೆ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸನೇ ಇದನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು
ಸೊ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಾವು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಸಾಹೇಬರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। हमारे बीएसपी के लीडर अंकुश गोखले, जमील खान साहब वगैरह कल मेमोरेंडम लेकर गए थे उमनाबाद तहसीलदार के पास कि साहब वो जो जज जो हरकत किया है उसके बारे में जो है केस बुक करो। मेमोरेंडम देने गए तो तहसीलदार अंदर बैठकर कौन है पूछा, तो ऐसा बीएसपी के लोग मेमोरेंडम, उसको बोलो जाओ बोलो बाहर। अरे ऐसा कौन बोलो, कोई आके बोले चाहूँ साहब ऐसा बोले, ए चल रहे बाद में बात कर बोल के, अरे तुरे बात करने के बाद उन्होंने गोखले साहब बोले मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, तू क्या बात कर रहे तुम साहब बोले, तो अरे चल यहाँ से इसको निकालो। उसके बाद तू मैं हो गए। खाली जो है एक ही सिक्के के दो रुख नहीं बता रहे, एक ही रुख बता रहे। उसके बाद ही ये सब हुआ। और अगर तहसीलदार को इमीडिएट सस्पेंड करना है, उसको डिसमिस करना, अगर नहीं करेंगे तो कर्नाटक मुस्लिम काउंसिल, तहरीक इंसाफ, दलित संघर्ष समिति, मारुति बौद्ध साहब का ग्रुप, बहुजन समाज पार्टी, जमियतुल उलमा, ऐसे कई मुस्लिम मूवमेंट ऑफ जस्टिस, ऐसे कई तंजीमें बहुजन समाज पार्टी के आज मेमोरेंडम की जो है साथ थे। मेमोरेंडम देने में सब लोग इसकी तायद किए हैं। पिंजारा समाज, जमियतुल खुरैश, हमारे नबी खुरैशी वगैरह भी थे। हम सब लोग अगर ये इमीडिएट अगर 8-10 दिन में नहीं होंगे तो बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे, बीदर बंद करेंगे। ये अगर कुछ अगर हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार यहाँ का जिला एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। सर अगर बस। कोई ऑफिसर गाली गलौज करता है तो उसके ऊपर हाथ उठाना क्या था? हाथ उठाए नहीं, ये गलत बता रहे, हाथ उठाए नहीं। ऐसा जो है वीडियो वायरल हो रहा है। वो वीडियो टोटली आजकल जो है बहुत कुछ होता है, ये उसकी बात को हम मानते नहीं, वीडियो गलत है होना बोलकर हम दलित हमारे बहुजन समाज पार्टी के लीडर को बदनाम करने की साजिश है और इसमें बड़े लीडर्स इन्वॉल्व है दूसरी पार्टियों के। बस इतना कहते हुए मैं कर्नाटक मुस्लिम काउंसिल की तरफ से इसका जो है खंडन करता हूँ। मेरा नाम सैयद गालिब हाशमी, कर्नाटक मुस्लिम काउंसिल जिला नायब सदर। मेरा नाम दत्तू सूर्यवंशी, कर्नाटका स्टेट जनरल सेक्रेटरी बहुजन समाज पार्टी। इस संदर्भ में मैं प्रेस के साथ ये बात करना चाहता हूँ, जो कल हुमनाबाद में जो घटी घटना, इसे मैं तीव्र खंडन करता हूँ। हमारे पार्टी के जो नेता लोग और कार्यकर्ता जो रायचूर की जो घटी घटना, जो बाबा साहब को अपमानित किया गया था एक न्यायाधीश की ओर से, पढ़ा लिखा इंसान की ओर से, तो उसके बारे में मेमोरेंडम देने के लिए गए थे। ये कोई ऐसी बड़ी रैली नहीं थी वो। तो उस संदर्भ में जब मेमोरेंडम देने गए तो तहसीलदार जानबूझ के उन्हें 2-3 घंटा रुकाया और रुका के उनके मन को लगने वाली बात उनको अवमानित किया और अवमानित करते हुए और जाति के नाम से उन्हें गाली गलौज भी किया और उसके साथ साथ बाबा साहब को भी उनके अवैध शब्दों में उन्हें अपमानित करने का काम किया उस तहसीलदार साहब, जो हुमनाबाद तहसीलदार ने किया। तो इसलिए ऐसा ये एक संघर्ष होने के बाद वो घटना घड़ी। वो घटना हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि एक तहसीलदार जवाबदार ऑफिसर होके इस ढंग का बर्ताव नहीं करना चाहिए। उन्होंने उसको समाधान करके उनका मेमोरेंडम लेके भेज देना चाहिए थी, इतनी घटना नहीं होती थी। इसलिए ये जो घटी घटना है इसके बारे में हमारे कार्यकर्ता भी अट्रॉसिटी केस उस तहसीलदार पे करे हैं, जाति निंदन का केस। तो इमीडिएट तहसीलदार को भी अरेस्ट करना चाहिए और उनको सस्पेंड करना, और अंकुश गोखले, जमील खान साहब और अन्य हमारे कार्यकर्ता जो जेल में हैं उनको रिहा करने का काम करे और न्याय दोनों को समान मिलना चाहिए। तहसीलदार पर हाथ उठाने की वजह क्या है सर? तहसीलदार पर हाथ कोई नहीं उठाया, उन्होंने उनको अपमानित किया, अपमानित करके उनको चिढ़ाने के बाद ये घटना घड़ी। ये घटना होने के लिए तहसीलदार ही कारण है। वीडियो वायरल हुआ ना सर, कुर्सियों से मार रहे सो है और हाथ क्यों? वो अब मल्टीपल करके बताते हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता मारते हैं इसका समर्थन हम नहीं करते। हमारे कार्यकर्ता बहुत लॉ एंड ऑर्डर के बहुत नियमित पालन करने वाले होते हैं, हम उसको नहीं मानते। लेकिन अंकुश गोखले, जमील खान साहब अध्यक्ष जी को और हमारे कार्यकर्ताओं को न्याय मिलना चाहिए और इस राज्य में SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ कभी भी मेमोरेंडम देने जाने हो या संप रैली करने दे हो, इस तरीके ही घटना घट रहे हैं। और ये जो मनवादी सरकार इस राज्य में है, मैं समझता हूँ इसके पीछे कुछ राजकारण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अपनी मांग, हक अधिकार की बात जब करते हैं तो उनको मान सम्मान से उनका हक अधिकार की जो पूछ रहे हैं उसका मेमोरेंडम स्वीकार करे। तो ये नहीं हो, तहसीलदार साहब ही कारण है। तो कल प्रोटेस्ट करें ना सर, फिर आज क्या है फिर? नहीं, किस वजह से आए आज आप लोग? आज हम इस वजह से आए, हुमनाबाद में जो हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करके अंदर डाले हैं, तो DC साहब उन दोनों को
इक्वल जस्टिस करे, अभी अरेस्ट एक तरफा क्या ना बिना पे करे करे, सर? एक तरफा ना करे। अरेस्ट जो करे क्या बिना पे अरेस्ट करे उनको? तहसीलदार को इन्होंने हमला किया बोल के करे हैं, लेकिन तहसीलदार पे उन्होंने हमला नहीं किया, हाथापाई हो गई। एफआईआर हुआ क्या सर? एफआईआर हुआ, केस दाखिल हुआ, जेल में। तहसीलदार के ऊपर भी तहसीलदार के टोटल 21 लोगों के 20 लोगों के ऊपर केस करे हैं, अभी अरेस्ट हो गए क्या वो? अरेस्ट हो गए हैं। और तहसीलदार को जो भी है अभी उन्होंने हॉस्पिटल में है, तो हॉस्पिटल में उन्होंने उनको बचाव करने के लिए सहारा ले रहे हैं ऐसा लगता है, इसलिए तहसीलदार को भी अरेस्ट करना चाहिए और दोनों तरफा इक्वल न्याय करे। हमारी मांग है कि हमें न्याय मिले और इस देश में जो SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाओं के ऊपर जो बार बार इस ढंग का अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के विरोध लड़ने वाले को इस तरह का षड्यंत्र करके अंदर डालने का काम कर रहे हैं। और दादा साहब कांसीराम बोले हैं, जब तुम्हारी संतान तुम्हारे नस्लें पढ़ने लिखे लगाएंगे तो ये मनवादी सरकार कोर्ट का सहारा लेके आपको अंदर करेगी। ये बात हमें आज साबित हो रही है। सर वो रायचूर का जो जज है उसके ऊपर एक्शन ली है कि अभी तक गवर्नमेंट? अभी तक गवर्नमेंट उनके ऊपर एक्शन नहीं ली, इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, उन्हें सस्पेंड करना, क्योंकि उन्होंने एक न्यायाधीश है, पढ़ा लिखा आदमी है और भारत के संविधान के वजह से ही उन्होंने वहाँ पर जज हो गए, नहीं तो इन्हें जज होने की इनकी काबिलियत नहीं थी। मनवादी अगर चतुर्वर्णीय व्यवस्था की सरकार होती तो कहीं कोने में एक झांग पर किसी खेत में पड़े होते। बाबा साहब ने दिए हुए संविधानात्मक हक की वजह से उन्होंने इतने बड़े पोस्ट पर है, वो ध्यान रखना चाहिए। अभी जो इक्वल न्याय बोल रहे हैं साहब, इक्वल न्याय कैसा होना आपके हिसाब से? ये घटना घटने के लिए कौन प्रोत्साहित किया? तहसीलदार किया, तो तहसीलदार को भी पकड़ना चाहिए। इंक्वायरी, तुम ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करो। और जज की तो बात आप सबको मालूम है, फोटो निकाला गया, हाँ, वो निकालने तक मैं नहीं आऊँगा बोले। देखो आज जो सिंबल ऑफ नॉलेज है, दुनिया मानती है, यूएनओ मानता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को एक सिंबल ऑफ नॉलेज, और भारत को इतना सुपर दुनिया में कहीं ऐसा संविधान नहीं है। इक्वलिटी, जस्टिस, इंडिपेंडेंट और समान विकास की बात जब संविधान में होती है, तो ऐसा पवित्र संविधान देने वाले बाबा साहब को अपमानित करते हैं तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को और सेकुलरिज्म को अपमान है और पूरे भारत के जन लोगों को, भारत के पूरे आबादी को अपमान है। आप बात करें। हमारे BSP के लीडर अंकुश गोखले, जमील खान साहब वगैरह कल मेमोरेंडम लेकर गए थे अमनाबाद तहसीलदार के पास कि साहब वो जो जज जो हरकत किया है